يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے. اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے. پالے انہیں ہنر سے پوسے انہیں جگر سے. اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے. اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے. سکھلائیں ہم سلیقہ. بڑا خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ نکل چکا. محبت میں آپ سن رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے. جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اولاد کی محبت میں بہادر نہیں سخی نہیں بزدل اور بخیل بن جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا تھا کہ آپ یہاں ہیں یا کہیں اور ہیں. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال ہے. پیغام میرا شروع ہو رہا ہے. رات کے سناٹے میں چچا نے بھتیجے سے کہا بیٹا کپڑا اتارو سو جاؤ. ہمارے نبی بھتیجا ہے چچا ابو طالب ہیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کنویں میں بھائی کو بھائی نے ڈالا ہے اور کپڑا اتارا. حضرت یوسف نے کیا فریاد کی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا اللہ کے نام پر میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابا حضور میری 4 فرمائش ہے. وہ 4 فرمائش کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہیں. پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا رات کے سناٹے میں چچا ابو طالب نے بھتیجے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹا کپڑا اتارو سو جاؤ. اللہ کے رسول کپڑا نہیں اتار رہے. چچا نے کہا کہ چچا کا حکم اور بھتیجا پورا نہ کرے کپڑا نہیں اتار رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا چچا جان میں کپڑا اتاروں میرے بدن کو آپ دیکھو مجھے شرم آتی ہے. آپ منہ پھیر لو پھر میں کپڑا اتارتا ہوں. یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا کپڑا اتارا تو حضرت یوسف نے فریاد کی کہ کپڑا تو دے دو. کنویں میں ڈالنا ہے ڈال دو لیکن کپڑا مجھ سے مت چھینو. یہ کپڑا اگر زندہ میں رہے گا تو سردی اور گرمی میں کام آئے گا. اگر مر جاؤں گا تو کفن میں کام آئے گا. باپ سے بیٹے نے کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں.
बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, ख्वाब को सच्चा कर लो, बेटा तैयार है। 4 फरमाइश है, आंख पर पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, चाकू तेज कर देना, और जब मुझे ज़बह करना तो मेरा सर आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। और आखिरी फरमाइश ये है, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में जान दे करके कामयाब हो गया। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैता मील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों को और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, कि इस्माइल का एक रोग कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। घर में 10 लोग अमीर हैं, मगर सबकी तरफ से एक कुर्बानी होगी, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ मैं ठिकाने आपको लगा करके छोड़ूंगा कि कहाँ आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होते हैं। मेरा पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा अकीके के हवाले से, जिनके बच्चों का अकीका है मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अरशद भाई, इरशाद भाई, अब्दुल कुद्दूस भाई, इनके बच्चों का अकीका है, मैं इनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह इन बच्चों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप की कोताही मेरा पहला पैगाम है, सुनिएगा ध्यान से। बाप ने कहा मेरे बेटे को अभी छोड़ दो, अभी छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा होगा खुद ब खुद नमाज पढ़ेगा। खतरनाक जुमला है, आपने यहीं से उसकी बुनियाद खराब कर दी। अब आसमान तक ये इमारत जो खड़ी होगी वो टेढ़ी ही जाएगी। आदत के खिलाफ है, जब तक कोई बच्चा काम पर लगाया ना जाए वो काम को पूरा नहीं करता। नमाज वो खुद ब खुद पढ़ेगा नहीं, आदत के खिलाफ है। और जब बचपन में उसके नमाज पढ़ने की आदत नहीं हुई तो वो जवानी में नमाजी बन नहीं सकेगा। इसलिए ये आदत के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ भी है। दूसरा जुमला बाप का सुना रहा हूं, थोड़ा सा बेदीन हो गया है। इसका जवाब बड़ा शानदार है कि थोड़ी सी जान निकल गई है। अब थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या बचा? जब दीनदार ही नहीं रहा तो क्या बचा? ये बच्चा अच्छा इंसान भी नहीं होगा, अच्छा मुसलमान भी नहीं होगा। आजकल आसान हो गया है, माँ बाप की तरफ से ये जुमला, हाफिज बन करके क्या करेगा? लोटा उठाएगा, मुसल्ला बिछाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक है कि क़यामत में सबको बच्चे की शफात मिलेगी, ऐसे बदनसीब माँ बाप को शफात नहीं मिलेगी। जनाजा रखा हुआ है, बेटा रो रहा है, पूछा अरे भाई अल्लाह के बंदे सबर तो करो 5 मिनट के लिए, इमाम साहब को नमाज तो पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। करे इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूँ कि बाप ने मुझे दुनिया की तालीम दी, मैं PhD करके बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मुझे इतनी तालीम दीन की नहीं दी कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं। इस बात पर रो रहा हूँ। बेटे को फांसी हो रही है,
उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की जा रही है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी माँ जिंदा है, मैं कान में अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। माँ जैसे आई, कान सटाया, बेटे ने दांत से कान काट लिया। कितना बड़ा बदनसीब है, मरने से पहले भी नाफरमानी करके जा रहा है। कहा कि ये तो पूछो कि मैंने माँ के कान क्यों काटे, यही माँ है, बचपन में चोरी करके आता था, ये पीठ ठोकती थी, अगर कान के नीचे एक लगा देती तो मैं चोर नहीं बनता, फांसी के ऊपर नहीं चढ़ता। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना, हजरत उमर की अदालत में बाप ने कहा कि मेरा बेटा नाफरमान है, बेटा कह रहा है कि मेरा बाप नाफरमान है। उस अदालत में फैसला क्या हुआ आपको सुन करके हैरत होगी। हजरत उमर की अदालत में यह फैसला हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन बेटा बाद में नाफरमान है, पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दी, पैदा तो किया, अच्छा नाम नहीं रखा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के बाप दुआ कर रहा है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा अगर सही हो गया तो ऊंट सदका करूंगा। घर लौट करके आया कि देखा कि दुआ का असर हो रहा कि नहीं, देखा बेटा उठ करके बैठा हुआ। तो अब अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार ऊंट कहां से लाऊंगा, ये तो राजस्थान में मिलता है, मेरे पास तो भैंस है, मैं भैंस दे दूंगा। दूसरी नमाज में देखा कि बेटा उठ करके खा रहा है, अब उसे यकीन हो गया कि मेरा बेटा ठीक हो गया, अब उसकी मिन्नत खिसक गई। वो कहता है मेरे परवरदिगार जो भैंस मेरी गुम हो गई है अगर दोबारा मिल जाए तो मैं सदका कर दूंगा। तो बेटा सुन रहा था, बोला अब्बा हुजूर आप फंस जाओगे, सदका के नाम पर जो भैंस चली गई है वो दोबारा मिल जाएगी। आपकी मिन्नत इस तरह सही होगी, आपको नुकसान नहीं होगा। आप इस तरह मिन्नत कीजिए, मिन्नत मांगिए कि जो भैंस मेरी मर गई है दोबारा जिंदा हो जाएगी तो राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पाथे दिन पाथे गए हर सकियों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। पहला पैगाम खत्म हो गया, नाफरमान बेटा कैसा होता है, कब कैसे बनता है, ये मैं दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम। छोटा बच्चा माँ से झगड़ा कर रहा, माँ ने खिसिया करके कहा कि बेटा 32 धारे मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, बद्दुआ कर दूंगी तू बर्बाद हो जाएगा। तो बेटा कहता माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध नहीं पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था, ये जनमुरीद कुर्सी पर बैठ करके गाली सुन रहा था। गाली क्या, गोला पर गोला छोड़ा जा रहा था, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते सुनते आजिज आ गया तो खिसिया करके खड़ा हुआ, काश कि तू मेरी बीवी नहीं माँ होती, मेरी माँ तेरी जगह होती, तू बीवी है इसलिए मैं तुझे नजरअंदाज कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है, इसलिए मैं तुझे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बूढ़े से जवान कह रहा है तू कुर्ता फाड़ता रहा, मैं तुम्हें कुर्ता सिला करके देता रहूं, तुम पायजामा फाड़ते रहो, मैं तुमको सिला करके देता रहूं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, बैठ करके रहते हो, सब काम मुझको करना पड़ता है। पूछने वाले ने पूछा, कह रहे नौजवान ये बूढ़े से जो बात कर रहे हो ये कौन है? कहा कि ये मेरा बाप। क़यामत आ गई, तुम बाप से इस तरह बात कर रहे हो जैसे नौकर से बात की जाती है। बेटा मीटिंग में बैठा हुआ है, फोन आया कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया। तो कहता मैं जरूरी मीटिंग में हूं, मैं आ नहीं सकूंगा, तुम लोग कफन दफन कर दो, मैं यहां से पैसा भेज दूंगा। आखिरी नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा भरी मजलिस में दोस्तों से कहता है काश के उस जगह का मुझे पता चल जाए,
जिस दरख्त के नीचे मेरे बाप ने दुआ मांगी, मैं पैदा हुआ, मैं उस दरख्त के नीचे जाता, बाप को बद्दुआ करता कि मेरा बाप मर जाए ताकि जमीन मकान दुकान सबका मैं अचानक में मालिक बन जाऊं। एक मिसाल है तजर्बे की, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कि हमारे बिस्तर से बिच्छू निकलता है, उसने हमें काटा नहीं, फिर भी उसको जूते से मारा जाता है। बिच्छू निकला, उसको बच्चा भी जूते से मारता है, चप्पल से मारता है। किसी आरिफ ने बड़ी नुक्ते की बात, राज की बात कही है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। बिच्छू ने काटा नहीं, लेकिन उसको जूते से मारा क्यों गया? तो लिखा है कि बिच्छू जब माँ के पेट में होता है, छोटा होता है, तो उसकी माँ जिंदा होती है, उसको संभाले रखती है। जब वो बड़ा होता है तो अपनी माँ के पेट को चाक करके वो बाहर निकल जाता है। जिसने बचपन में माँ के ऊपर जुल्म ढाया, अब वो जहां कहीं भी इंसान को मिलता है उसकी जूते से खबर ली जाती है। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं, आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, उम्र चाहिए, मेरी जबान नहीं, नबी की जबान है। हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। आप माँ बाप पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आपकी रोजी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी सेहत बढ़ा देगा, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ा देगा। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह सटपटा रहे हैं, डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम कितना कमाते हो एक दिन में? का 1 रुपया। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर, 4 आना दरिया में डालता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आना कर्ज चुकाता हूँ। का समझ में न आया, सर चकरा गया। का बताता हूँ, जो मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ खाने पीने में और अपने घर के खर्चे में 4 आना खर्च करता हूँ, 4 आना जो कर्ज में दे रहा हूँ, छोटे बच्चे पर खर्च कर रहा हूँ, इसको कर्ज दे रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये कर्ज मेरा वापस कर देगा। और 4 आना कर्ज चुका रहा हूँ, जब मैं बच्चा था तो मेरे बूढ़े माँ बाप ने मुझे खिलाया पिलाया था, वो कर्ज मेरे सर पर रह गया था, उसको लौटा रहा हूँ। 4 आना दरिया में डाल रहा हूँ, सास ससुर पर खर्च कर रहा हूँ, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा आखिरत में